Any guy wants to take hints, baby go ahead. कि मेरे खर्चे तो मैं खुद उठा लूंगी, but समन जो मैंने नखरे उठाए, please. But the most sexiest quality in a man is actually because मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ. Now this is थोड़ा सा चटपटा question. This is getting a little bit spicy. Money is my biggest motivation. I won't lie. It is because of him. It is for him. And I hated my parents for this reason. उस इंसान ने मेरी लाइफ इतनी कंट्रोल की, इतना डोमिनेट किया, इतना रुलाया. One thing that really makes me the happiest is जब तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो ना, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, एंड तो जो पूरी ट्रिप का खर्चा था, इट वाज अराउंड oh my god, my parents are super strict. Okay, how do you deal with stress? I'll be very honest. Okay, मैं सो जाती हूँ. जब योगा ही सिखाना था तो सीए क्यों किया? And when are you getting married? So, are you dating? How many people have you dated? मैं बहुत ज्यादा डरती थी लड़कों से बात करने में. Welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel, I'm a chartered accountant by qualification. With that, I'm also a yoga trainer, a podcast host, and a content creator. I love making videos. I love talking. मैंने realize किया है कि बहुत टाइम हो गया है मैंने अपने बारे में नहीं बताया. And there are a lot of people who are new on my channel. So firstly, if you're new here, welcome, and I am so grateful to have your support. This video is going to be a get ready with me plus a Q&A. तो थोड़े दिन पहले मैंने Instagram पे एक Q&A किया था, and where I asked any questions that you guys want to ask me. So मुझे बहुत सारे questions आए थे, उसमें से I selected a few of them and I made a list of all these questions. So आज के इस वीडियो में I'm going to get ready and answer all of your questions one by one. Also मैं 1 घंटे पहले नया मेकअप लाई हूँ, brushes and foundation and concealer and everything, though I'm not very good at it. So yeah, I'm super excited to get ready and answer all of your questions. But before I begin, please make sure that you like this video. Please subscribe to my YouTube channel. It would really mean a lot. And let's get started. Also, I know that my makeup skills are not great, so if I mess up, please don't judge me. So the first question is, what is your age? So hi everyone, I am CA Surbhi Gandhi and I am from Mumbai and I am 26 years old. I recently turned 26 on 18th of October 2025. What is your height and weight? Okay, so a lot of people ask me about my height. मैं जब भी कोई Instagram पे फोटो अपलोड करती हूँ और मेरे पास इतने सारे DM आते हैं, what is your height, what is your height, you look really tall. So yes, I am very tall actually. I am 5'8". जहाँ पे भी अगर कभी कभी मैं heels भी पहनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना इतनी लंबी लगती हूँ. एंड कितनी बार ऐसा होता है कि guys don't match my height and I really feel that लड़कों की हाइट मेरे से छोटी होती है बहुत बार. सो जिनकी भी जो भी लड़के हैं उनकी हाइट छोटी है मेरे से. दे ऑल आर माई ब्रदर्स. सो आई एम 5'8" एंड माई वेट इज 66 kgs. Weird, I never thought that लोगों को मेरा वेट जानना होगा, but yes. Where are you from? Okay, so I was born and brought up in Mumbai, but both my parents are from Rajasthan. My dad is from Jodhpur and my mother is from Bhilwara. So if you're a Rajasthani, high five, because I am a Rajasthani too. एंड बट मेरे पापा जब 21 ईयर्स के थे तब वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे. उससे पहले मेरे दादा सा यहाँ पे बॉम्बे में रहते थे. एंड माई मदर इज फ्रॉम भिलवाड़ा एंड आई पर्सनली लव विजिटिंग Rajasthan, especially Jodhpur, because I have a lot of relatives over there. Are you dating? How many people have you dated? Okay, so मैं कभी भी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी पोस्ट नहीं करती हूँ, because I want to keep it personal. Also because a lot of my relatives, a lot of my CA aspirants like you guys, you all follow, my parents follow my channel. मेरे पापा हर YouTube वीडियो देखते हैं. So I am just going to keep that question to myself. But अगर like whatever happens, whenever मेरी शादी हो गई या कुछ भी हुआ, तो you guys will be the not the first person, but yes, of course तुम्हें पता चल ही जाएगा. So I want to keep that question to myself. But yeah, I feel like इस एज में थोड़ा बहुत like liking, crushes, ये तो सबको होते हैं and that is very normal. So yeah, dating life, I am only going to keep it personal because I truly feel that nazar is real and I don't want to tell that ever. जिस दिन शादी होगी ना, I think I am going to be that person जो सीधा hard launch करेगी अपने husband का. So yeah, तुमको पता चल जाएगा, but I am never going to share about my personal life or especially the dating wala part or anything like that over here. So
सॉरी। ऑल्सो यू नो पहले मैं बहुत ऐसी थी कॉलेज में कि यार डेटिंग वेटिंग नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, ये सब फालतू चीज़ें होती है। एंड आई हैड स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, आई स्टिल हैव स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। तो बिकॉज आई कम फ्रॉम अ टिपिकल मारवाड़ी फैमिली, तो बहुत ज़्यादा डरती थी लड़कों से बात करने में, एंड मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था ये सब चीज़ों में। आई वाज लाइक आई वांट टू स्टे अवे, बिकॉज एक बार जब तुम्हारा दिल टूटता है ना, आई हैव सीन माई फ्रेंड्स एंड अ कपल ऑफ पीपल, पहले तो उनके साथ वो यू नो दे आर लाइक ऑल स्टार्टिंग में इन दैट हनीमून फेज, एंड देन बाद में, सो आई एम लाइक आई जस्ट प्रेफर टू stay away from all these things. Next question, when are you getting married? देखो अभी मैं 26 years की हूँ, okay, and you can expect me not to get married anytime soon because मेरी एक बड़ी बहन है and she is 3 years elder to me. So पहले उसकी शादी होगी and उसके बाद मेरी शादी होगी, होपफुली होगी, क्योंकि मैं भी होप कर रही हूँ हो जाए, बट मे बी इन द नेक्स्ट 2-3 years. Yeah, 3 years I think. Next travel destination. Okay, so अभी मैं recently दुबई travel करके आई and trust me, that was the best trip of my life. Two things, because first reason is वो ट्रिप मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ थी जिसको मैं 10 साल से जानती थी, और मैं बहुत कम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमी हूँ। लास्ट ईयर मैं कश्मीर गई थी, ये ईयर मैं दुबई गई अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। सो इट वाज द बेस्ट ट्रिप ऑफ माय लाइफ। आई लव ट्रैवलिंग। सेकंड रीजन, ये ट्रिप इसलिए भी स्पेशल थी बिकॉज आई वाज इनवाइटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दुबई चैप्टर टू गिव अ टॉक टू कंडक्ट अ योगा सेशन. So I love traveling. I feel that it teaches you a lot of things. It teaches you how to be jugadu. It teaches you how to manage everything on your own. Especially someone like me जो हर बार घर से बाहर भी निकलती है ना, I have to inform my parents कि मैं किधर जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कब आऊंगी वापस, किसके साथ जा रही हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला. तो मुझे लगता है कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ, आई गेट दैट फ्रीडम जहाँ पे मुझे किसी को कुछ आंसर नहीं करना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है. आई माइट plan a few trips, but the next destination, there are a couple of destinations that I want to visit, and that is, first is Japan, second is Bali, third is Maldives, of course. Then I also want to go to London. So yeah, like these are on the list. So yeah, India तो मेरा बहुत हो चुका है घूम के, but these places I really want to go. I just hope that I get to visit these places super soon. दुबई ट्रिप के एक्सपेंसेस. सो ना मैंने दुबई के व्लॉग्स डाले थे, एंड जो यूट्यूब पे मैंने अभी स्टार्ट किया, जस्ट स्केड्यूल्ड इट लाइक कपल ऑफ डेज बैक, बट इंस्टाग्राम पे इफ यू चेक आउट माई इंस्टाग्राम, इफ यू नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम यू शुड एक्चुअली. इसका आईडी जो भी है आई विल पुट इट समवेयर ओवर हियर. सो इंस्टाग्राम पे मैंने व्लॉग्स डाले थे, एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था व्हाट वाज योर ट्रिप एक्सपेंस, हाउ मच डिड यू स्पेंड. सबसे पहले तो आई एम नॉट लिविंग ऑन एनी शुगर डैडी और समथिंग. सो जो पूरी ट्रिप का खर्चा था, इट वाज अराउंड 2 to 2.5 लाख. एंड मेरे को लगा था कि ये बहुत बजट ट्रिप होगी, बिकॉज मैं और मेरी फ्रेंड डिसाइड करके गए थे कि यार हम सब बजट में करेंगे एंड वी वोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड वील हैव फन. बट वहां जाके ओ माय गॉड, वी वर लाइक ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, एंड दैट ट्रिप का जो पूरा एक्सपेंस था दैट गॉट शूट अप. बट एंड वी वर लाइक ओ यू लिव ओनली वंस एंड लेट्स एक्सपीरियंस दिस. सो हमने ऑल लाइक जितने भी प्रीमियम एक्सपीरियंसेस थे जो मुझे हमेशा से करने थे, दैट वर ऑन माई लिस्ट. दुबई के वी जस्ट टेक इट ऑफ. सो या थोड़ा सा इट वाज एक्चुअली नॉट अ बजट ट्रिप एट ऑल. आर योर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट? ओह गॉड, माई पेरेंट्स आर सुपर स्ट्रिक्ट. ओके, मतलब दो आई साउंड वेरी चिल एंड लाइक मेरे को फर्क नहीं पड़ता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट स्पेशली जब मैं 20 साल तक की थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोन तक नहीं दिलाया था, एंड आई हेटेड माई पेरेंट्स फॉर दिस रीजन, बिकॉज उनको लगता था कि यू नो आई स्टार्ट टॉकिंग टू गाइज एंड आई हैव बॉयफ्रेंड्स एंड मैं बिगड़ जाऊंगी, तो उनने मेरे को फोन नहीं दिलाया था. सो या दे आर सुपर स्ट्रिक्ट, एंड उनको स्पेशली मतलब माई डैड, आई तो फील दैट मुझे अभी भी, आई डोंट नो व्हाई, मुझे अभी भी उनसे डर लगता है, बिकॉज मेरे घर पे पीपल आर नॉट वेरी चिल विथ यू नो having male friends or talking to guys and these things. So yeah, एक दो चीज़ों में they are strict, but कुछ चीज़ों में they are not like. और एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि ना मैं इतनी ज़्यादा ज़िद्दी हूँ ना, मैं इतनी ज़्यादा बदतमीज़ हूँ ना, कि मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहती हूँ. इफ़ आई वॉन्ट टू गो आउट टू पार्टी ऑन अ फ्राइडे नाइट, आई विल जस्ट गो. सो या आई थिंक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स रेज smarter kids because they know, you know, how to jugadu and how to just run away from home. And yeah, of course they are strict. In fact, the thing is, my parents sound that they are super chill and उन्होंने हमको बहुत freedom दी है and जो चाहिए वो करने दिया है, but yeah, they are strict. So
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब योगा ही सिखाना था तो सीए क्यों किया? अब ये क्वेश्चन भी मुझे इतने सारे लोग पूछते कि व्हेन यू न्यू दैट यू वांट टू गेट इनटू योगा और फिटनेस, देन व्हाई डिड यू परस्यू सीए? देखो, फर्स्ट थिंग इज, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ पहले के वीडियोस में, कि सीए मेरी लिस्ट में कभी था ही नहीं, बट मेरे पापा को सीए बनना था। एंड मुझे ऐसा लगता था कि यार उनने जो सपना देखा उनका नहीं हुआ, उन्हें नहीं किया, तो वो सपना मैं पूरा करूं। एंड एक और चीज़ थी कि जब मैं 12th में थी ना, मुझे लाइफ में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज, वेरी क्लूलेस, वेरी कोई डायरेक्शन नहीं था। तो मेरे आसपास के लोग सारे लोग सीए कर रहे थे। एंड मैंने सोचा कि यार चलो देखे देखते, अगर पास हो गए तो ठीक, नहीं तो वैसे भी नहीं करना था अपन को तो सीए। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं सीए पास हो गई। फर्स्ट जो लेवल था फाउंडेशन का वो मेरा क्लियर हो गया। एंड जिसके बाद आई वाज लाइक, अब फाउंडेशन हो गया तो अब इंटर दे देते। इंटर में फर्स्ट अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ तो इट मेरे ईगो पे आ गया। एंड इट लाइक, मेकअप सही हो रहा है क्या, लाइक आई डोंट नो, आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं बात करते करते मेकअप भी सही से करूँ, बट तो मेरे ईगो पे आ गया था। एंड आई वाज लाइक, अब तो पास होना ही पड़ेगा बिकॉज इज्जत का सवाल है। सो मैंने पागलों जैसी पढ़ाई की। बट यार सीए ने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी। एंड अगर मैं शायद सीए नहीं होती तो मैं ये यूट्यूब चैनल नहीं होता, मेरे को नहीं पता होता कि मैं क्या वीडियोस बना रही होती। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई टुक दैट डिसीजन। मुझे बहुत डिसिप्लिन सिखाया है सीए ने, बहुत जिद्दी होना, परसिस्टेंट होना सिखाया है कि अगर कोई चीज़ तुमने सोची है ना तो अड़ जाओ उसके पीछे, एंड यू विल get it definitely. So being a CA was definitely not a bad decision for me. How do you manage your personal and professional life? Okay, so personal and professional life, I think that I don't have a lot of social life. Like मेरे ज़्यादा friends नहीं है, मैं बहुत अकेली रहती हूँ, and I don't hang out, I don't go for parties, I don't like to exploring places. I'm a very super low key girl, जिसको ना घर पे रहना पसंद है, घर का खाना पसंद है, कम फ्रेंड्स पसंद है, कम बात करना पसंद है, एक्सेप्ट लाइक अ कपल ऑफ देम जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। तो मैं ज़्यादा घूमती फिरती नहीं हूँ, लाइक बहुत रेयरली। एंड इफ आई गो ऑन अ ट्रिप्स दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इन जनरल लाइक मुंबई में आई डोंट हैव अ सोशल लाइफ। पर्सनल लाइफ, आई थिंक पर्सनल लाइफ के बारे में मैं अपने सोशल मीडिया पे इतना पोस्ट नहीं करती हूँ। सो देयर इज नो बैलेंस एज सच। पेरेंट्स है उनको खुश रखती हूँ, कुछ फ्रेंड्स है थोड़े बहुत उनसे कभी बात कर लेती हूँ। तो ऐसी कोई मेजर पर्सनल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि जो मुझे बैलेंस करना है, यार मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हैं, मुझे संभालना है, घर संभालना है, नथिंग लाइक दैट। बाकी प्रोफेशनल लाइफ ऑफ कोर्स मैं मेजर टाइम अपना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही देती हूँ। आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू थिंग्स कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। मंथ के स्टार्टिंग में आई सेट कि मुझे ये मंथ में ये चीज़ें अकम्प्लिश करनी है। सो यार like pretty much chill, like there's no as a balance or something like that. What are the 3 lessons that you wish you learned earlier? That is a great question. In fact, the first lesson is learn to give up on people a lot more sooner, because not everyone deserves to disappoint you twice. The second lesson would be never let toxic people affect you. Now this is very personal. बहुत टाइम तक I had this toxic person in my life, and it was not my boyfriend, not my father, someone else, and not even my friend. But yeah, उस इंसान ने मेरी लाइफ इतनी कंट्रोल की, इतना डोमिनेट किया, इतना रुलाया। So now I just don't talk to them. So I think just learn to remove toxic people from your life as soon as possible. And the third lesson would be, the more you ask, the more you will get. मैं बहुत ऐसी बच्ची थी जो बहुत शाय थी, बहुत इंट्रोवर्ट थी। मुझे लोगों से बात करने से बहुत डर लगता था और मैं बहुत चुप चुप सी रहती थी। उसकी वजह से आई फील दैट आई मिस्ड अ कपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बट देन नाउ आई थिंक कि अब एट दिस पॉइंट मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचे। एंड आई एम सुपर फ्रैंक, सुपर शेमलेस इन आस्किंग। एंड आई फील कि जो मांगता है ना उसको मिलता भी है। लाइक सो डोंट सेल्फ रिजेक्ट योर सेल्फ, जितना हो सके अपने आप को पुश करते रहो। हाउ डू यू डील विद स्ट्रेस? ओ माई गॉड, आई बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। मैं सो जाती हूँ जब भी मुझे लग रहा है कि डर लग रहा होता है या समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ एंड टेंशन हो रही होती है। आई एम द वन हु कैन स्लीप एनी टाइम
anywhere. Like abhi bhi if you tell me just sleep, I will sleep. I love sleeping. Honestly बताओ तो मैं सो जाती हूँ, but I know that is just a temporary solution. You cannot avoid stress by sleeping all day. But stress सबको होता है. You need to learn to manage stress. I have realized one thing कि stress कब होता है? जब आप कोई काम नहीं करते हो, जब आपको पता है कि आपको करना है. नॉट वर्किंग क्रिएट स्ट्रेस, बट वर्किंग डज नॉट क्रिएट स्ट्रेस. जब तुम्हारा काम पाइलअप हो जाता है ना कि यार ये करना था और अब वो नहीं हो पा रहा है, दैट क्रिएट्स स्ट्रेस. सो नॉट वर्किंग, नॉट मीटिंग डेडलाइंस, नॉट स्टिकिंग टू द कमिटमेंट्स, दैट क्रिएट्स स्ट्रेस. जितना हो सके मैं ट्राई करती हूँ कि अपना जो काम है वो मैं टाइम पे ख़त्म करूँ ताकि स्ट्रेस बिल्डअप ना हो. जब मैं पढ़ाई भी कर रही थी तब इवन इट वाज द सेम थिंग कि पढ़ते पढ़ते भी स्ट्रेस होता था. आई यूज्ड टू मेक श्योर कि जो भी डे का टारगेट मैंने सेट किया है एटलीस्ट मैं उसको कंप्लीट करके ही सो, नहीं तो मैं सोती नहीं थी. ट्राई टू कंप्लीट your task on time, and I think that is the best way to get rid of stress or maybe reduce stress to some extent. Also yoga, meditation, that is of course comes with a no-brainer. That really helps to manage stress. Just sitting with yourself alone and just trying to analyze things कि क्या गलत जा रहा है and where you need to improve, that will help a lot to manage stress. Oh my god, मैंने बहुत ज़्यादा पाउडर ले लिया है, iPad पे भी गिर गया. How to be consistent with yoga. ओके, सो आई कैन बेट यू ऑन दिस. अगर तुम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, फिर चाहे वो जिम हो, चाहे वो योगा हो, या फिर चाहे वो पिलाटेस हो, या कोई एनी स्पोर्ट हो, यू नीड टू prioritize it and you need to have some time of your day for it. So say for example कि जैसे मेरा फिक्स रूटीन है कि सुबह उठते ही मुझे जिम जाना है, तो I will make sure no matter what I will go to the gym. जब अगर कभी मैं सुबह शूट कर रही होती हूँ और सुबह नहीं होता है, तो I make sure that आई डोंट स्किप. मे बी मैं घर पे कर लूंगी या फिर मे बी मैं नीचे वॉक पे चली जाऊंगी, बट आई वोंट स्किप इवन अ सिंगल डे. आई डू समथिंग लाइक समथिंग. मे बी जिस दिन योगा करने का मन नहीं है उस दिन मैं सिर्फ मेडिटेशन कर लूंगी. जिस दिन मेडिटेशन करने का मन नहीं है उस दिन मैं जिम में चली जाऊंगी. जिस दिन जिम जाने का मन नहीं है उस दिन मैं कोई होम वर्कआउट कर लूंगी. बट आई डोंट मिस वर्कआउट्स बिकॉज आई थिंक दैट कीप्स मी सेन. एंड एक चीज तुम रियलाइज करो कि ये जो भी चीज है वो तुम तुम्हारे लिए करो. यू आर नॉट डूइंग इट फॉर एनीवन एल्स. इसके रिटर्न्स तुम्हें मिलेंगे, इसके जो बेनिफिट्स है वो तुम्हें मिलेंगे. यू विल look better, you will have more confident. When you're confident you will talk better. When you talk better you attract more opportunities. So everything starts with your health. You need to realize this, that your health is the center of all the important decisions of your life. So करो या मरो. इट्स लाइक nobody is going to force you. बड़े होते ना तो कोई बताता नहीं कि ऐसा करो वैसा करो. You need to be smart enough to understand कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है. So I would say that at least like 20 minutes, have 20 minutes in a day कि तुम 20 minutes कभी भी, सुबह शाम दिन रात, anytime, just do your working out, you're moving your body, because movement changes your mood. How to build confidence. I realized this one thing, that जिस भी इंसान में confidence की कमी होती है, it is because first they don't see themselves as a confident person. So you must have heard this, fake it till you make it, and the same goes with confidence. It is like intentionally you're trying to act like the person that you become. The second thing is कॉन्फिडेंस नीड्स एविडेंस. सो से फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने डिसाइड किया कि कोई चीज आप करोगे और आप नहीं करते हो, दैट क्रिएट्स एन एविडेंस कि यू आर अ लूजर, यू डोंट डू व्हाट, यू डोंट स्टिक टू द प्लान्स. तो अगर जिस भी इंसान को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू स्टिक टू द कमिटमेंट्स, स्टिक टू द प्लान्स दैट यू मेक टू योरसेल्फ. बिकॉज जितना ज्यादा अपने ही बनाए हुए प्लान्स को फॉलो करोगे ना, योर ब्रेन नीड्स एविडेंस. तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, योर ब्रेन विल से गिव मी एन एविडेंस where you were fearful but you still showed up and you were still confident. So make sure कि जो भी आप काम डिसाइड करते हो you do, so that your brain will get more evidence of circumstances जहाँ पे तुम इतने confident नहीं थे, still you showed up, still you did it, and then that builds confidence and it is compounding. धीरे धीरे करोगे, at the end you will definitely become a confident person. Look good, dress well, smell good, take care of your hygiene, make sure that you be around good people, talk smart, read good books, and knowledge also builds confidence. What is the unhealthiest thing you still can't resist eating? Interesting question. There was a time where I could not resist eating French fries. Oh my god, I loved French fries. I was like, I could eat like
two MACD के large French fries. I was so addicted to fries, and you know I had a fund, like a specific fund. जब मैं articleship में थी, my stipend was something around 12,000 or something. I used to keep a specific 500 per month का मैं सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खाती थी. अगर मेरा मूड अच्छा है तो मैं फ्रेंच फ्राइज खाती थी, अगर मेरा मूड खराब है, दिन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं फ्रेंच फ्राइज खाती थी. सो अब मैंने बहुत बहुत कम कर दिया, बिकॉज आई रियलाइज दैट इट इज नॉट गुड एंड द ऑयल इज नॉट good and it's not good for your health. So but yeah, if it had to be like one thing, it would definitely be fries. मतलब I was mad for fries, especially McD के piri piri fries. Next question is how to get over a toxic relationship. Oh my god, जब तुम toxic relationship में होते हो ना, and especially for girls, and if you're a girl watching this, लड़कियों की आदत ऐसी होती है ना कि वो जाती रहेगी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाती रहेगी, या भीख मांगती रहेगी, प्लीज मुझे अटेंशन दो, प्लीज मुझे ये करो, प्लीज मेरे लिए एफर्ट्स लो, प्लीज मेरे लिए ये करो. एंड तुम बेयर मिनिमम में भी सेटल हो जाते हो. मतलब अगर तुम्हें बेयर मिनिमम में भी नहीं मिल रहा है ना, तुम्हें लगता है कि बस यू डिजर्व this and you love this person. Realize that what your worth is, realize your value, realize that you cannot settle for bare minimum. You need someone who gives you the princess treatment, you need someone who makes you feel good about yourself, you need someone who appreciates you, who plans dates for you. So if you're in a toxic relationship, please run away from this person. I heard this somewhere, the longer you stay in a train, the more expensive the return journey gets. So the quote was never about the train, but it was कि जब अगर तुम किसी गलत इंसान के साथ जितना ज्यादा टाइम तक रुकोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होएगा टू लीव दैट पर्सन. अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, दैट इफ अ मैन कैन चीट यू वंस, इफ अ मैन कैन लाई टू यू वंस, he will do it again. So it's up to you if you want to give him a second chance. और कितनी बार ऐसा होता है कि लड़कियां सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, 10 चांसेस दे देती है, फिर भी अगर कोई इंसान लड़का नहीं सुधर रहा है और फिर भी तुम्हें उसके पास जाना है, तो भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग ओवर हियर. तो get this tested, sister. आप नाम के आगे ये क्यों नहीं लगाते? I got this question in my DMs. I thought I'll answer it here. मेरे जो यूजर नेम है इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे या इनफैक्ट इवन यूट्यूब पे, आई डोंट पुट CA आगे. इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू, ऑफ कोर्स मैंने इस डिग्री के लिए, इस नाम के लिए, इस टैग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बट आई फील कि इट जस्ट क्रिएट्स अ रिस्ट्रिक्टिव ऑडियंस. कि मतलब देखो, जिनको पता है कि मैं CA हूँ तो दे नो इट, राइट. मैंने बायो में लिखा हुआ है और उन्होंने कोई फिगर आउट किया ही होगा कभी ना कभी, देखा ही होगा कि मैं CA हूँ. बट आई फील कि अगर मैं CA लगा देती हूँ ना, तो लोगों को एक टिपिकल एक माइंडसेट रह जाता है. जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो तुम्हें पता है कि डॉक्टर ये चीजें ही करता होगा, बट मैं CA का कोई काम नहीं कर रही, मैं CA की जॉब नहीं कर रही. आई डोंट वांट पीपल टू हैव अ टिपिकल इमेज अबाउट माई सेल्फ कि नो मैं CA का, फाइनेंस का या वो काम कर रही होंगी. तो या आई थिंक इसलिए मैं ये नहीं कर रही, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो मुझे लगता है कि अगर मैं CA लगाती तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है. फिर मे बी शायद सिर्फ फाइनेंस वाले या सिर्फ CA एस्पिरेंट्स मुझे फॉलो करें. एंड आई वॉन्टेड टू कीप माई ऑडियंस ब्रॉड, बिकॉज आई डू योगा, आई डू पब्लिक स्पीकिंग, आई डू कॉन्टेंट क्रिएशन. आई थिंक दैट इज द रीजन. एंड जिसको पता होता है उनको पता ही होता है. लाइक इफ यू नो अमन गुप्ता, एवरीवन नोज दैट ही इज अ CA. सो इतनी सक्सेसफुल बनो ना कि लोगों को पता ही चल जाए कि तुम यू नो यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, एक मिनट मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, बिकॉज लिपस्टिक लगाते लगाते मैं बात नहीं कर पाऊंगी. सही है क्या? आईलाइनर काजल भी लगा ही लेती हूँ क्योंकि सुंदर दिखूंगी. लाइनर लगाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एवर. मतलब इट इज लाइक बैलेंस शीट टैली करने के बराबर है. अगर दोनों आंख में सेम लग जाए ना, तो उतनी खुशी होती है जितनी CA एग्जाम्स में बैलेंस शीट टैली करने पे होती थी. What is one thing that makes you the happiest? One thing that really makes me the happiest is when I see my father proud of me, because बहुत बार ऐसा होता है that a lot of times he wanted to do a few things, and when he sees me doing it, या फिर उनको मैं कुछ भी बताती हूँ कि आज ऐसा हुआ, या मुझे इधर से इनविटेशन आया, या फिर आई एम गोइंग हियर, या फिर एनीवेयर. लाइक इवन जब मैं दुबई जा रही थी, एंड आई टोल्ड हिम दैट यू नो आई गॉट इनवाइटेड टू दुबई फॉर अ टॉक. So yeah, whenever I see him happy and whenever I am the reason, I think that makes me the happiest. So I just want to do, life में मैं जो भी कर रही हूँ ना, it is for my dad, it is because of him, it is for him, and I just want
him to be the happiest person in the entire world because I know that this man deserves it. I just hope कि ना उनके जो भी सपने हैं मैं जल्दी से जल्दी पूरे करूँ and that will make me the happiest. What is your biggest motivation? ओके, मनी इज माई बिगेस्ट मोटिवेशन, आई वोंट लाई, बिकॉज मुझे लगता है पैसा लाइफ की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. अगर तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तुम एक ट्रिप बुक करो, इंटरनेशनल ट्रिप, और बाली घूम के आओ, जापान जाके आओ. मनी कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड. सो आई फील कि मेरे लिए पैसे से ज़्यादा और कुछ मोटिवेशन ही नहीं है. मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे मतलब बस ये नहीं चाहिए कि कोई मुझे मना करे कि तू ये नहीं ले सकती या तू ये नहीं खरीद सकती बिकॉज तेरे पास पैसे नहीं है. या फिर आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन हु ever goes and asks to people for money, or even my parents or anyone. I don't want to be dependent, and this is my biggest fear, and this is the thing that I work hard for, कि मुझे कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगने पड़े. भगवान मुझे इतने पैसे दे कि मैं खुद के खर्चे, खुद के नखरे, खुद के शौक, खुद के पैसे से पूरे कर सकूं. सो मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी. हैव यू एवर बीन बुलीड? ओके, सो ड्यूरिंग स्कूल आई थिंक आई वॉज नॉट ऐसे मेजर बुलिंग कभी नहीं हुआ ऑनेस्टली, बट आई वॉज वेरी स्किनी. और मुझे हमेशा से बोलते थे तू क्यों इतनी पतली है, तू कुछ खाना नहीं खाती क्या, तेरी मम्मी तेरे को खाना नहीं देती है. लाइक आई वॉज मे बी थोड़ा बहुत आई वॉज ऑलवेज टोल्ड कि बहुत पतली है, बहुत पतली है. एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक दैट पतले लोग बहुत अच्छे होते हैं. लाइक आई वांट टू बिकम पतला नाउ. आई लाइक सो या मेरे को ऐसे मेजर बुलिंग कभी नहीं हुई ऑनेस्टली. बट आई नो दैट फॉर दोज हु गो थ्रू bullying, I know it is very difficult to deal with it. All I can advise you is never accept anything that people say about you. Just realize that जो भी वो आपके बारे में बोल रहे is just an opinion, is just a reflection of who they are, how they are, and not who you are, right? Your worth is only dependent upon how you see yourself. Last few questions and I'll keep it super quick. Next question is 3 things you look for in a guy. Now this is thoda sa chatpata question. This is getting a little bit spicy. The first thing is the guy has to be super ambitious. Like I love people with ambition. I love men with goals who want to do something in life, who want to build an empire, like who are disciplined, who are confident in themselves, know that they can do great things. Another quality I would look for in a man is he should be super honest and loyal. Like I hate it when people lie, because स्पेशली समवन जिसको झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है, बिकॉज मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, मैं बहुत बड़ी गधी हूँ. आई कैनॉट लाई. इनफैक्ट अगर कभी मैं झूठ बोलने का ट्राई भी करूंगी ना तो सामने वाले को समझ आ जाएगा झूठ बोल रही. तो मुझे तो झूठ बोलना आते ही नहीं है. लाइक आई बी सुपर ऑनेस्ट विथ यू, भले तुम्हें बुरा लगे तो लगे. सिमिलरली लाइक आई हेट पीपल हु लाइज. अगर मुझे पता चल गया कि तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो, then तो भाई you are gone. So just be very honest with me. Another quality is I think the person should be soft spoken. Like a lot of men don't realize this, but the most sexiest quality in a man is actually the ability to be soft spoken. Like females love men who are soft spoken. Females लव गाइज जो बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, चिल्लाते नहीं है. आई हैव सीन मेन शाउटिंग एंड येलिंग एंड चिढ़ के बात करना, विच आई हेटेड ऑलवेज. सो just talk softly, no matter how bad the situation is. Never lose your cool. I think I would always fall for a guy who is very soft spoken and very confident. मुझे लगता है कि मेरे खर्चे तो मैं खुद उठा लूंगी, बट समन जो मैंने नखरे उठाए, प्लीज, like you're welcome, fill in the form, I need you. And also men who take care of their health, like especially someone like me who comes from a fitness background. I want my man to be healthy and fit and be obsessed with fitness and yoga or gym or anything related to health in general. And this person should not create drama at all, because I hate drama and I hate dramatic people. So like someone who is peaceful, someone who who is calm, who is peaceful. मेरे को ना 3 क्वालिटी पूछी थी और मैंने 30 क्वालिटी बता दी. आई डोंट नो इफ दीज काइंड ऑफ मैन एग्जिस्ट. अगर भगवान की मर्जी हुई तो भगवान भेजेंगे, whatever, but I said everything. So if any guy wants to take hints, baby, go ahead. I had so much fun talking to you guys.
I think I should do this more often. I should come and talk to you guys. I should do like a question answer, keep doing these question answer thing. And I love sharing about my life, and I love talking to you guys. So I hope you guys equally enjoyed watching this video. In case if you have any more questions, please make sure that you drop them in the comments below. I will make sure that I answer these questions whenever I make my next Q&A. Thank you so much for watching. If you enjoyed watching this video, please make sure that you like this video. Please subscribe to my YouTube channel. It would really mean a lot. And yeah, see you in the next video. Until then, take care and enjoy your day. Whatever you're doing, just make sure that you give your best to it, like give your 100% to it, because I really want कि आप जो भी करो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिले. विश यू द बेस्ट. और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल. अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो. ओके बाय.